ओम शांति। मोर आदरणीय श्रोता मानक नमस्कार। ओम शांति। आज व्यस्तबहुल जीवन ने आमे सकाळ ठू राति पर्यंत अनेक प्रकार समस्या को सामना करिया को पड़ी थाए। बेले बेले समस्या बहुत छोट रूप होइथिले मध्य आमे ताकू ठीक रे समाधान करि न पारि थाउ। सेतिपई आजिर युवा समाज छोट छोट परिस्थिति को सामना न करी सामना करि पारु नथिबारु तांकर आत्मविश्वास कमी जाउची, जहाँ फल आम प्रत्येक दिन किसी दुर्घटना शुणा को पाउछु। तेणु प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय रे जो शिक्षा दिया जाउथिबा राजयोग द्वारा ही सब समस्यार समाधान हो पारिबो। गोटे समस्या आम जीवन में जिते बेले आमर दृष्टिकोण नकारात्मक हो जाए से बहुत बड़ रूप धारण करि थाए। समस्या आसीबो जीवन रे, किंतु ताको सामना करिबा पई आमको पॉजिटिव हवा पई पड़िबो। जेपरि कि यदि पहाड़टी आम रास्ता रे आसुछि चला पथरे आमे डिस्टर्ब हो जाउछु। पहाड़ चढ़ीबा पुणी ओल्हेइबा पुणी शारीरिक एनर्जी भी जाउछि, कष्ट भी होउछि, शारीरिक कष्ट भी होउछि। किंतु जेते बेले आमे फ्लाइट रे यात्रा करि थाउ से पहाड़ आम पई छोटिया बालीगरड़ा सदृश हो जाई थाए। ठीक से भली जिते बेले आमे निजर मानसिकता को बहुत उच्च को नहीं जिबा सेते बेले समस्या आमको अति छोट रूप से देखा जीवो। समस्या आसीबो किंतु पारी करिबा केमिति पारी करिबा से आमर मानसिकता उपरे निर्भर करि थाए। तेणु राजयोग द्वारा ही आमे से शक्तिर अधिकारी है परिबा। आमे समस्ते माँ दुर्गा को पूजा करि थाउ। दुर्गा महिषासुर को बद्ध करिथिले। केतेबेले बद्ध करिथिले? जेतेबेले तांका हाथ रे अष्टशस्त्र थिला। अर्थ दुर्गा माने दुर्गुण नाशिनी। निज भितरे थिबा दोष दुर्बलता आम पई समस्या रूप नहीं थाए। तेणु से समस्या को पारी हवा पाई आम पाखरे अष्ट शक्तिर आवश्यकता रही, जहाँकि दुर्गा हाथ में अष्टशस्त्र रूप से देखा जाए। महिषासुर किए? महिषासुर होचंदी असुर। मनुष्यर नेगेटिव संस्कार, नकारात्मक अभ्यास, विभिन्न विकार आज आसुरिक प्रवृत्ति। तेणु आसुरिक प्रवृत्ति को विनाश करिबा पई हेले अष्ट शक्तिर आवश्यकता रही। आम भितरे से अष्ट शक्ति अंतर्निहित हो रही, किंतु से अष्ट शक्ति को समयानुसारे आमे यदि कार्य लगेबा ताले जेते बड़ परिस्थिति हेउना कहीं आमे ताको सहजरे पार करि परिबा।
ଯେପରିକି ସହନ ଶକ୍ତି। ସହନ ଶକ୍ତିକୁ କୁହାଯାଏ ସବୁ ଶକ୍ତିର ଜନନୀ। କାହିଁକି? ଦୁନିଆରେ ପଥରଟିଏ ଯେତେବେଳେ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକାରର ଅସ୍ତ୍ରର ଆଘାତ ତାକୁ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ମୂର୍ତ୍ତିକାର ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ସେ ପଥରଟିକୁ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ପଥର ତା ଭିତରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଲୁଚିକି ରହିଥାଏ। ମୂର୍ତ୍ତିକାର ତାର ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଥରକୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାର କରିଦିଏ ସେତେବେଳେ ସେ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଆଜି ଆମ ଭିତରେ ଅନେକ ଦୈବୀ ପ୍ରକୃତି, ଦୈବୀ ସଂସ୍କାର ଆମ ଭିତରେ ଲୁଚିକି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରମାତ୍ମା ଆସି ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଦୋଷ, ଦୁର୍ଗୁଣ, ଅବଗୁଣ, କମି କମଜୋରି ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅବଗୁଣ, ଦୋଷ, ଦୁର୍ବଳତା ସହିତ ଆମେ ଏତେ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ, ଯେଭଳି ଗୋଟିଏ ଡ୍ରେସ୍ ଟାଇଟ୍ ହେଇଗଲେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ସେଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ସେଭଳି ଆମେ ଆମର ପୁରୁଣା ସ୍ୱଭାବ ସଂସ୍କାର ସହିତ ଏତେ ଅଧିକ ଜଡ଼ିତ ଯେ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସହଜରେ ତ୍ୟାଗ କରିପାରୁନାହୁଁ। ସେଥିପାଇଁ ପରମାତ୍ମା ଏ ସଂସାରରେ କିଛି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଜୀବନରେ ପରୀକ୍ଷା ରୂପରେ ଆସନ୍ତି, ମୂର୍ତ୍ତିକାର ରୂପରେ ଆସନ୍ତି ଆଉ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ସେଇ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ନିନ୍ଦା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଅପମାନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ, କ୍ରିଟିସିଜିମର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ସହଜରେ ସହନ କରିନେବା ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇ ଦୈବୀ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜନ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବା। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗପଟିଏ କହୁଛି। ଗୋଟିଏ ପଥରକୁ ଯେତେବେଳେ କାରିଗରଟିଏ ନେଉଛି ମୂର୍ତ୍ତି ବନେଇବା ପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ସେ ନିହଣରେ, ହ୍ୟାମରରେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ପିଟିବା ପାଇଁ, ମୂର୍ତ୍ତିର ଆକାର ଦେବା ପାଇଁ ତାକୁ ଆଘାତ କରିଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ମୂର୍ତ୍ତିକାର ତାକୁ ନେଉଛି ମନ୍ଦିରକୁ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପାହୁଚ ମାନ ରହିଥାଏ, ପାହାଚ, ସେଇ ପାହାଚରେ ତାକୁ ରଖିଦେଉଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ସେ ପାହାଚକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତି ଲୋକ। କାହିଁକି ନା ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକାରର ଗୋଟିଏ ମାଡ଼ ତ ନିଶ୍ଚିତ ସହିଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଥର ନେଲେ ମୂର୍ତ୍ତିକାର, ସିଏ ଆଉ ଦି ଚାରିଟା ମାଡ଼ ବା ଦି ଚାରି ଥର ତାକୁ ହ୍ୟାମରରେ ପିଟିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ତାକୁ ମୂର୍ତ୍ତିକାର ନେଇ ମନ୍ଦିରର ଦେବୀଙ୍କର ଆସ୍ଥାନ କରିଦେଉଛି। ଲାଷ୍ଟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ପଥର ମିଳୁଛି ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ମୂର୍ତ୍ତିକାର ହ୍ୟାମରରେ ପିଟିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ସେ ମୂର୍ତ୍ତିର ଆକାର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅସ୍ତ୍ରର ଉପଯୋଗ କରିଛି, ସେ ପଥର ସବୁକିଛି ସହିଛି। ଏତେ ସହିଲା ପରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଉଛି
एवं मूर्तिकार ताको नहीं गोटे सुंदर मंदिर तैयारी करी ताको स्थापन करुछि एवं ताको हजार हजार भक्त श्रद्धालु तांको पद मस्तक तांको पाद पाखरे जाई नतमस्तक करुछंती। तो कहिबार कथा यदि जीवन में आमे किछि सहन करुछे ताहले आमे निश्चित से पूजन योग्य हो पारिबा। सेतिपई सहन शक्ति पाई आमे देखै थाउचे आम्र वृक्ष आंब गछ कह जाए फलंती गछ माड़ सहे आंब गछरे जेते बेले फल भर्ती होता है सेते आंब वृक्ष नई जाई थाए। से नम्रंती फलेन वृक्ष नम्रंती गुणिन जना। तेणु जो वृक्ष फल लदा होता है भरपूर होता है से सब बेले नम्रचित। तेणु सहन शक्ति प्रत्येक जीवन में आवश्यकता रही सहन शक्ति। आपण देखंतु जो माने जीवन में आग को जाइछंती उच्च स्तर को जाइछंती उच्च सोपान रे पहुंचीचंती से माने निश्चित सहन करिछंती। महात्मा गांधी आम देश को स्वाधीन करबा पई अनेक थर जेल जाइछंती इंग्रेज मानकर चाबुक माड़ सहन करछंती हसी हसी सहीचंती। तेणु आमे तांको आज बापूजी नाम रे नामित करी तांकर गुणगान करुछे। सेमती देखा गले अनेक महापुरुष मु आपन को जने महापुरुषंकर जीवन कहानी सुनाउची। संत तुकाराम थरे गंगा नदी स्नान करी फेरुथांती अचानक तांको ऊपर जने छेप पकई देला। तो तुरंत तुकाराम जाई आउ थे स्नान करके आसिले। पुणी जिते बड़े स्नान करके आसुचंती से पुणी देखुचंती जे से लोकटी आउ थे पुणी छेप पकेला। तो 100 थर से लोक तुकाराम को ऊपर छेप पकेला। जेते बेले 100 थर स्नान करी तुकाराम आसुचंती जो व्यक्ति तांको ऊपर छेप पकेइथिला से आसी तांको पाद तले साष्टांग प्रणिपात करुछि। सेतिकी बेले ताकू संत तुकाराम तांको पाद पाखरु उठेई पचारले बाबा तुमर कौन है तमें कहीं मो पाद तले पड़ुच। से कहला आज्ञा मु सेही अधम मु सेही दोषी जे आपण को ऊपर 100 थर छेप पकई थी। सेतिकी बेले संत तुकाराम कहिले आज मोर बहुत बड़ भाग्य होइछि मु सबुथर गंगारे थरे स्नान करी बुड़ पकई के आसे किंतु तुमे मते आज से सौभाग्य देइछ जे मु 100 थर गंगारे बुड़ पकेइली आ मोर समस्त पाप धोई हो गला। तो से व्यक्ति संत तुकाराम कर जने प्रधान शिष्य भाव निजको परिगणित करथिले। तो कहिबार कथा जदि संत तुकाराम सही न थांते ताहले कौन से व्यक्ति तांका पाद तले पड़ी थांता कि। तेणु से सहन शक्ति ही तांको से व्यक्ति तांको ठारे शिष्यत्व ग्रहण करिथिला। ठीक से बड़ी आमे समस्ते गौतम बुद्धंकर ना शुणीचे। थरे गौतम बुद्ध तपस्या करुथांती एई समय जने व्यक्ति तांको पाखक आसिले तांको कहिले पानी मागिले पीवा पाई। से जेहेतु भगवान को ध्यान रे मग्न थिले तेणु से तुरंत तांको पानी दे पारिले नाही। जेतेबेले दे न पारिले सेतेबेले से जे लोकटी जंगली भील मैं जहाँ को आम कहे
जंगल जो शबर जातीय लोक रहउचंती से माने सी कौन कला ना गौतम बुद्ध को विभिन्न प्रकार बहुत जोर से पाटी करी तांको गाड़ी देला। जेते बेले से गाड़ी देला सेते बेले गौतम बुद्ध तांका ध्यान भग्न हो गला। ध्यान भंग है सेते से तांको पचारचंती कौन है कौन कहूच से कहला रे सीता भाषा रे कहला तते मु केते बेला हला पानी मागुची तू मते टिके पानी दउनु अने सेमान तो अशिष्ट सेमान भाषा जानती नहीं तेणु गौतम बुद्ध कहले तते मु केते बेला पानी मागुची काहे मते दउनु। गौतम बुद्ध ताको बसई देले चुपचाप पानी आनिकी दे देले। से व्यक्ति जते बेले पानी पीला से तांको आश्चर्य ही पचारची अरे तू किए तो मुझे एते गाड़ी देली किंतु तू तोर कौन सी अनुशोचना नहीं तो मन रे कौन सी तिले मात्र द्विधा नहीं तो हसी हसी मते पानी दउचु। सेतिक बेले गौतम बुद्ध कहले जदि कई कहा को कौन सी जिनस दिए से जिनस जदि से न रखे ताल से जिनस ता पाखक फेरी जाए से भली तुम्हें मते गाड़ी देल माने तुम्हें मते अड़िया देल मुझे तुम गाड़ी की ग्रहण न कली तुम जिनस तुम पाखे रहिला। ए फिलोसफी ए जीवन दर्शन को से जंगली भील बुझी पारिला एवं गौतम बुद्धंक पद अनुकरण कला। तो मु कहिया को चाहे जे सहन शक्ति गोटे एभली शक्ति से मनुष्य को बहुत उच्च शिखर को नहीं जाई पारे। तो जे सहन शक्ति धारण करिछि से व्यक्ति नम्र चित व्यक्ति सहन जो व्यक्ति पाखरे सहन शक्ति रही से व्यक्ति सरल हर्षित मुख नम्रचित से हसी हसी सब कथा को भूली जीव लेट गो करदब से क्षमा करदब कहना क्षमा देवत्व भूषण तेणु ता भितर क्षमा आसीब। तेणु जे सहन करुची से दैवी आत्मा से अन्यर दोष दुर्बलता को क्षमा करी भूली जीव। तेणु जीवन यात्रा रे जीवन मार्ग रे यदि आमे सहन करिबा सहन शक्ति को धारण करिबा ताले आम भितरे खुशी आसीब। ता सहित को व्यक्ति को सहन करिया को पड़ी थाए सेतिपय कहती फलंती गछ माड़ सहे जमती आंब वृक्ष रे जेते आंब लदा होई थाए पाचिला आंब लोक ताको पत्थर मारती 10टा पत्थर मारिले गोटे आंब खसी थाए। ठीक से भली ज्ञानी गुणी व्यक्ति को लोक अनेक मिथ्या अपवाद देले मध्य तांको मुखरु सर्वदा आशीर्वचन वरदानी बोल बाहरी थाए। से माने अपशब्द प्रयोग करती नहीं तांको मुखरु सदा आशीर्वचन बाहरी थाए। तेणु सहन शक्ति सब शक्तिर जननी तेणु से शक्ति को आम जीवन रे धारण करिबा एवं जीवन रे सफलता को प्राप्त करिबा। ओम शांति।